Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Father. Thank you, Master. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर के आप पवित्र नाम का धन्यवाद करते हैं. Hallelujah. Thank you, Master. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for this wonderful time and opportunity, Master, that you have given us, Lord, that we all are able to gather in one accord and unity, Master, to worship you, Lord. Thank you for the second day of fasting and prayer, Master. Yes, Lord Father, as we come seeking you, Lord Jesus. Yes, precious Master, seeking you alone, O Lord Father. Fill us more with your Holy Spirit today, Lord. Yes, Master, lead us, guide us, and instruct us, Lord Father, that the word of God may give us the direction and light unto our lives. Abba Father, we give this session into your hands, Lord. We surrender our lives into your hands, Master. Take control of everything concerning our lives, Lord Jesus. Precious Lord, all those who are connected with us today on this online meet, we bless them in Yeshua HaMashiach's name, Lord. Thank you, Master. In the precious name of Jesus Christ, we ask and pray. Amen. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. We welcome you for the second day of the fasting and prayer session. Hope you all are blessed and happy. Hallelujah. Glory to God. Yesterday's session helped you and blessed you. I believe that. Amen. Hallelujah. So let's continue today as we had left yesterday. 5784. What it indicates, right? Stands for open doors. Hallelujah. कल हमने देखा परमेश्वर की वचन से कि जैसे ही सितंबर 15 को जूश न्यू ईयर सेलिब्रेट होगा तो हम जो हिब्रू कैलेंडर है उसके अनुसार जो है we will be entering into 5784. Hallelujah. Glory to God. So this stands for open doors for Joseph in the land of Goshen. Hallelujah. So this is a prophetic word which we all have received. Glory to God. Today being the 1st of September, right? So today we have certain new things as the Lord has led in my heart. And before we move on to receive the promises of God or the blessings of God, God is asking us to do certain things, right? Yesterday I shared with you when a prophetic word is shared, it always comes with that instruction. Hallelujah. Glory to God. So unforgiveness is a thing in a person's life which hinders blessings, right? जो हम किसी और को जब हम हमारे अंतकरण से जो उनको हम क्षमा नहीं कर पाते, ये चीजें हमें हिंडर करती है, हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में हमें हिंडर करती है. हालेलुया. So when we talk about unforgiveness today, as we have entered the first day of this month, and in 15 days we are entering a new year, that is the original new year actually. जो हम 1st Jan को celebrate करते हैं Gregorian calendar, that's not actually the new year, but according to the God's calendar, we will read the scripture also, why this is the God's calendar. In the coming few minutes, we'll be going through it. But I'm just giving an outline. जैसे हम नए साल में जाते हैं तो हम हमारे पास्ट के जो बोझ है या बर्डन्स है या जो bondages or stronghold है, we don't want to carry it, right? As I told earlier, 5784, the 4 number stands for open door. And as we are entering through this blessed doors of opportunity this coming year, we don't want to carry the baggage of unforgiveness with ourselves, isn't it? तो जो भी कुछ हमारे आत्मिक बढ़ोतरी में, हमारे शारीरिक बढ़ोतरी में या हमारे पारिवारिक बढ़ोतरी में रुकावट बनने की कोशिश करता है, तो ये है अनफॉरगिवनेस का एक स्पिरिट. हालेलुया. ग्लोरी टू गॉड. सो सबसे पहले हमारे अंतःकरण को हम परमेश्वर को समर्पित करते हुए फर्स्ट वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर ओन लाइव्स, आवर स्पिरिट मैन. हमारा जो आत्मिक मनुष्य है उसके शुद्धिकरण पे हम क्या करने वाले हैं, हमारे आंखों को केंद्रित करने वाले हैं. राइट? अंडरस्टैंडिंग? ऑल आर विथ मी? आर वी रिसीविंग? Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. So the first important thing is forgiveness doesn't mean that now you become friends with ever the person who was hurting you or has been an source
through whom you have received that bitterness in your heart. जब हम किसी व्यक्ति को क्षमा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम फिर से जाकर उनसे पहले जैसे ही दोस्त बन जाए. फॉरगिवनेस का कभी भी ये मीनिंग नहीं होता. बिब्लिकली जब हम किसी को फॉरगिव करते हैं तो हमें परमेश्वर को पहले सीख करना है. वी नीड टू सीक गॉड फर्स्ट, क्योंकि हम में वो क्षमता नहीं है. हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में जो चोट पहुंचाई जाती है, उसकी वजह से हम में वो क्षमता नहीं होती कि हम एक कदम उठाकर बड़ा मन कर कर हमें उन्हें क्षमा करना है. पर ये हमारी कैपेसिटी में नहीं होता, इसीलिए हम परमेश्वर की जो है मदद को चाहते हैं. वी वांट द हेल्प ऑफ गॉड दैट ही मे स्ट्रेंथन अस टू फॉरगिव अदर्स, isn't it? Because our Lord Jesus Christ has always told us we need to forgive, because if we don't forgive, we are hindering our blessings, right? Yes. So it's difficult to forgive people who have hurt us intentionally or unintentionally. बोलने के लिए तो काफी आसान होता है ना. It's, you know, why don't you forget or forgive? But God only knows what process or what struggle a person goes through because of certain people's behavior which has caused a wound in their hearts, isn't it? So forgiving a person not at all means that you're going to be friends again. It doesn't mean that at all. You know, we need to pray and we need to seek God and we need to forgive. But this is all a process. ये सारा एक process के समान है. So here you just pray on it, and you know you can't forgive without full or total reconciliation, right? हम किसी व्यक्ति को जब तक क्षमा नहीं कर पाते, जब तक पूर्ण तरीके से रिकंसिलिएशन नहीं हो जाता, समझौता, रिकंसिल करना, राइट? ये सिर्फ परमेश्वर की ओर से ही हो सकता है. यू नो, दिस इज नॉट मैन्स डूइंग एट ऑल. हालांकि कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अगर हमारे क्षमता में होता या बस में होता तो फिर the topic would have been different, isn't it? But we know we are weaker in that area and we need God. Hallelujah. So we can't do it without total reconciliation, right? So for example, yesterday you hurt me, you know, when you were drinking tea with me, and you hurt me with some nasty words, and you are having this history of always wounding people with the way you behave with people, right? ऐसे व्यक्ति है जो कल चाय पीते वक्त आपने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो मुझे चोट पहुंचाई है, और आपका इतिहास, एक चरित्र ऐसा है कि आप हमेशा से ही ऐसे हरकतों में अपने आप को इन्वॉल्व करते हो. तो आप कैसे डील करोगे? दिस इज एन एग्जाम्पल आई एम गिविंग. सो एंड द नेक्स्ट डे, you know, we are like, you know, okay, so what happened? Nothing. We can just plan about tomorrow and we can, you know, meet tomorrow and have a cup of tea again. ऐसे कभी भी नहीं होता, isn't it? So it's not that easy to forgive people. कल हमको किसी ने चोट पहुंचाई और अगले दिन हमने उनको क्षमा किया, और फिर से हम उनसे कहते हैं कि चलो कल का क्या प्लान है, एक दूसरे के खांधे पर हाथ डालकर फ्रेंड्स की तरह, ओके कम ऑन लेट्स फॉरगेट व्हाट हैपेंड, चलो व्हाट इज द प्लान फॉर टुमारो. ऐसे कभी भी नहीं होता. प्रैक्टिकल अगर सोचा जाए, इट डजंट वर्क लाइक दैट. सो व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? सो वी आर हैविंग डिफिकल्ट टाइम टू deal this aspect of you know, forgiveness, and that is the reason we are asking the help of God. So today we are going to pray and deal this thing, so that when we are entering the promises and the prophetic scriptures that we have received, yes, absolutely, time heals, but without God nothing can work in our life. We need God to give us that strength. Hallelujah, glory to God. So today we are going to pray over certain things and then move ahead, because we have a lot of things to cover today and tomorrow. Because whatever the Lord has given me, you know, I'm writing it in my book. It's in my book and so many pages are complete now. So I need time, and I really don't want to prolong it for more than 30 to 40 minutes, because yesterday's video was very lengthy, right? Deliberately forgive, yes. Deliberately forgive. So कभी भी ऐसे नहीं होता कि लोग ऐसे समझते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हम क्षमा कर देते हैं तो वो ऐसे समझते हैं क्षमा करना मतलब हम फिर से पहले जैसे एक रिश्ते में थे हम वैसे हो जाएंगे.
पर वैसा प्रैक्टिकली नहीं हो पाता, because sometimes God intentionally disconnects us from such kind of intentional things which is trying to hinder us, and which is trying to uh, become and stumbling block in our life. हालेलुया. तो हमें परमेश्वर को अनुमति देना है कि कितने भी वजहों से या कितने भी कारणों की वजह से जहां पर हमारे अंतःकरण को चोट पहुंची है, तो हम इंटेंशनली डेलिबरेटली परमेश्वर की उपस्थिति में आके हम लोगों को क्षमा करेंगे. राइट, हमारा जो लॉर्ड्स प्रेयर हम करते हैं, आवर फादर इन हेवन, राइट, व्हाट डू वी से एवरी डे? फॉरगिव देम व्हाट दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग. दैट इवन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेड दैट. Similarly, we need Christ in our lives to forgive people. We cannot do it by ourselves, right? इसलिए हम थोड़े मिनटों के लिए प्रार्थना कर कर आगे हम परमेश्वर ने हमें बहुत अलौकिक जो सामर्थ्य के साथ जो prophetic words दिए हैं उसकी ओर बढ़ेंगे. Hallelujah. Let's all close our eyes and thank God for this wonderful time and opportunity and pray. Hallelujah. थैंक यू प्रेशियस मास्टर. धन्यवाद करते खुदावन यीशु इस सुंदर समय के. प्यारे परमेश्वर, हमारे अंतःकरण में जो बोझ है प्यारे परमेश्वर, यस लॉर्ड फादर, जहां पर हमें हमारे हृदय में चोट पहुंचे परमेश्वर, जहां पर हम असमर्थ है दूसरों को हम क्षमा करने के लिए, आज आपकी मदद को हम मांगते हैं प्यारे परमेश्वर. वी सीक यू लॉर्ड एंड वी आस्क योर हेल्प मास्टर. यस लॉर्ड, वी वांट कंप्लीट रिकंसिलिएशन मास्टर in the places, Lord Father, we have been wounded, and we feel, Lord Father, that we are incomplete to achieve it, Lord Father. Strengthen us, Master, that we may even forget and forgive the things, Lord Father. And we declare and decree today, Lord Father, those things will never stand as an hindrance in our life, Master. And we can grow spiritually more stronger and stronger, Master, even physically, Lord Father. Yes, Lord Father, that we may be the vessel, Lord Father, where your Shekinah glory will overflow through our lives, Master. Yes, Abba Father. Strengthen us, Master, to move ahead, Lord Father, looking upon to you alone, O Lord Jesus, and to leave away all the bitterness and wounds, Lord Father, and to forgive people, Lord Jesus. Yes, Master, you alone can build our relationships, Lord Father. You alone can bring reconciliation into our lives, Lord Jesus. Yes, Lord Father. In the precious and matchless name of Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. Hallelujah. As we have prayed, I believe, God has strengthened each one of us, and He is in control to give us more strength to move ahead with His promises. Hallelujah. Yes, hallelujah. Glory to God. So now let's move quickly to the things that we need to cover today. So I'm going back to 5784, right? I'll be sharing a screen with you here, so you might understand what are we intending about, what we are sharing about, right? Yes. Okay, is this page visible to you all? Yes? Okay, thank you, Jesus. So this is just an outline. We are not going into deep of the 7 biblical feast. हम किस लिए इस चीज को जान रहे हैं? जो बाइबल में दिए गए 7 पर्व जो है, हालेलुया, तो जो लास्ट के जो है ट्रम्पेट्स, एटोनमेंट और टैबरनेकल्स, इस पे हम विशेष ध्यान देने वाले हैं, राइट? सो एज वी ऑल नो, we are entering 5784. 8 stands for pay, PEH, right? And 4 stands for Dalit, that is number 4, which is a door. That is what we saw. So as you have seen here, trumpets, atonement, and tabernacles, this 7 feast, right? So let's read the word of God and understand परमेश्वर हमें इस पर्व के बारे में, या जो जूश कैलेंडर है, ये हम क्यों जानते हैं और उसको हम क्यों पढ़ते हैं? Why are we doing this Bible study, or why are we studying it and understanding the Jewish calendar? Hallelujah. So let's read the word of God. Leviticus chapter 23 verse 4. लेवी की किताब 23वां अध्याय और 4था वचन हम पढ़ेंगे. Thank you, Jesus. If anyone can put it on the chat box, it will help others to read. Thank you, Lord.
So I'll be reading it in English. So these are the feasts of the Lord, holy convocations which you shall proclaim at their appointed times. तो यहाँ पर जब हम देखते हैं लेवी की किताब में, ये सारे पर्व जो है इंसानों ने किए हुए नहीं है. This is not man-made festivals. This is given by God. How do we understand this? This is written in the Bible. Hallelujah. लेवी की किताब 23वें अध्याय में हम देखते हैं तो वचन ये कहता है, these feasts are of the Lord, holy convocations which you shall proclaim at the appointed times. So all these festivals which we are seeing in the slide here, these are not man-made festivals. इसलिए जो Jewish New Year भी आता है, ये मनुष्य ने किया हुआ एक डेट नहीं है. This date is from the time of creation, right? So this is the correct date which we celebrate on the 15th of September. That is the Rosh Hashanah, right? Hallelujah, glory to God. So here when we talk about the 7 biblical feasts, we are concentrating why we need to know these kind of things. क्यों हम इन सारी चीजों को पढ़ना चाहते हैं? ये इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह का जो पहला आगमन हुआ, जो पास ओवर, अनलीवन ब्रेड और फर्स्ट फ्रूट और पेंटिकॉस्ट, ये जो परमेश्वर यीशु मसीह के पहले आगमन को जो कंप्लीशन है वो दर्शाता है. और ट्रम्पेट्स, एटोनमेंट और टैबरनेकल्स ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन को दर्शाता है. अगर हम इस पर्व के बारे में, इस पर्व की अगर सीख नहीं लेंगे तो हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन का जो समय है या उसकी तैयारी है उससे वंचित रह जाएंगे. हालेलुया. How many of you are understanding this? Why it is important for a Christian to understand the Bible from a Jewish perspective. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. So, ये इसका importance है. Hallelujah. So, I will just stop sharing the screen now. I just wanted you all to concentrate on what it means. 7 पर्व, उसमें से जो है अब आने वाला जो है अटोनमेंट जो होता है, यौम किप्पुर, उसका मतलब उस समय पर पूरे साल में लोगों ने जो जो पाप किए हैं या परमेश्वर से जो दूर हो चुके हैं, परमेश्वर उन्हें समय देते हैं. जो जूश लोग हैं उस समय पर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर पश्चाताप करते हैं. इस तरह से वो क्या करते हैं, अपने पापों के लिए क्षमा मांगते हैं. पर हम जो मसीह में आ चुके हैं, हम जानते हैं कि हमारी पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो चुकी है. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस. So let's get back to something very important today. Hallelujah, glory to God. सबसे पहले हम एक चीज को यहाँ पर देखने वाले हैं. हम देखने वाले हैं कि परमेश्वर जो ये सितंबर का महीना शुरू हो चुका है, यहाँ पर परमेश्वर ने जो हमें एक विश्वास के साथ जो एक वचन के लिए परमेश्वर ने हमें तैयार किया है, उस वचन को पढ़ने से पहले हम एक नई बात को सीखने वाले हैं. सबसे पहले हमने unforgiveness के बारे में सीखा. Isn't it? We just dealt, you know, how we are supposed to forgive others, right? On the second part, we are going to see that जो पाप का एक कैरेक्टर होता है, the sin which separates man from God. Because of sin, we are separated from God's glory, but because of the finished work of cross, we are reconciled again with God. Hallelujah. So yesterday when I was praying, I was taken to certain things which I thought to share with you. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Okay. Is this page visible to you all? देख पा रहे? Hallelujah. Yes. Yes or maybe. Yes. देख पा रहे? Okay. ठीक है. सो अगर आप यहाँ पर गौर करके देखेंगे, यहाँ पर एक साइक्लिक पैटर्न दिखाया जा रहा है, सर्कल 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 यहाँ पर, राइट. सबसे पहले जो है वहां पर एक व्यक्ति जो है, ही इज वर्शिपिंग एन आइडल, सिन. व्हाट इज सिन? सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जब हम पाप के बारे में बात करते हैं, सिन ये शब्द कहते हैं. व्हाट इज सिन एग्जैक्टली? सिन इज अ ट्रांसग्रेशन ऑफ लॉ और एन ऑफेंस अगेंस्ट लॉ. अगर एक नॉर्मल शब्द में कहा जाए, परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करना, उसको पाप कहा जाता है. सो वेयर डू वी रीड द स्क्रिप्चर? Let's go back to the Bible and see the Gospel of 1 John chapter 3 verse 4. Whoever commits sins also commits lawlessness, and sin is
लॉलेसनेस, जो परमेश्वर ने हमें नियम दिए हैं उसका उल्लंघन करना, उसके विरुद्ध कार्य करना मतलब पाप करना है। और रोमी की किताब 6वां अध्याय 23वां वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 23 says, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. हालेलुया। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पाप करने के बाद ऑपरेशन की आत्मा कार्य करने शुरू हो जाती है। पीपल आर ऑप्रेस्ड, यू नो, इन द वर्ल्ड पीपल आर स्ट्रगलिंग ड्यू टू ऑपरेशन। दबाव, उन पे बोझ, स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, राइट। जैसे ही एक इंसान अपना हाथ जो है पाप की ओर बढ़ाता है और पाप में भागीदार हो जाता है तो वो पीड़ित हो जाता है, ऑपरेशन में चला जाता है, राइट। उसके बाद जब एक व्यक्ति ये पीड़ा से गुजर रहा होता है, वो रियलाइज करता है कि कुछ तो गलत हो रहा है, इज़न्ट इट। हम लोग सभी इस दौर से गुजर कर आए हैं और परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए मसीह है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। And this person who is wailing and crying here goes through a process of repentance. कई बार आपने देखा होगा कि हमारे उपवास प्रार्थना में हमने पश्चाताप की प्रार्थनाएं करवाई है। ऑनलाइन में भी आपने अगर रिकॉर्डिंग्स देखा है, रिपेंटेंस ये एक दिन की बात नहीं है, दिस इज एन एवरीडे एक्टिविटी। हालेलुया। क्योंकि जाने अनजाने हम मसीह होने के बाद भी हम कई बार ऐसी चीजों में अनइंटेंशनली इंटेंशनली आ जाते हैं जहां पर हम परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करते हैं। इसलिए हमें पश्चाताप करना ही है, राइट। इट इज अ राइट लाइफस्टाइल ऑफ अ क्रिश्चियन टू रिपेंट इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं व्यक्ति पश्चाताप कर रहा है, उसके बाद हम देखते हैं डिलीवरेंस। डिलीवरेंस मतलब छुटकारा। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो जब ऑपरेशन की दौर से गुजरता है वो ऐसी जगह पर आ जाता है कि उसने अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर क्या करना है, पश्चाताप करना है। ये मसीह जीवन का भाग है। हालेलुया। आप कह सकते हैं सिस्टर मैंने 4-5 साल पहले जो है मैंने पश्चाताप किया था, पर वो आज के लिए काफी नहीं है, राइट। Just few minutes back also you must have done something in your thought also or in your heart also which was not pleasing in the sight of God, right? So it's always a right practice to come in the presence of God and repent. इसके बाद जो आता है छुटकारा, छुटकारा पाना, इन हर चीजों से जो है डिलीवरेंस पाना। परमेश्वर के जो सेवक है उनके पास हम जाकर प्रार्थनाएं करवाते हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, छुटकारा की प्रार्थना करते हैं। आप जो इस दौर से गुजर रहे हो, आपको हीलिंग चाहिए या डिलीवरेंस चाहिए, इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर आपको क्या करते हैं, आपको आशीषित करते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। हालेलुया। इसके बाद परमेश्वर आपको क्या देते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा पीस, मतलब आपको एक शांति, शालोम पीस के साथ भरते हैं। आपके परिवार में एक अलौकिक शांति का आप अनुभव करते हैं। आप प्रभु यीशु मसीह और वचन में क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। हालेलुया। यही स्थिति जो है इजरायली लोगों की थी। They used to sin, they used to go in oppression, they used to repent, then they used to seek deliverance, and once God delivers them, they will be in peace. यहाँ पर आप पीस को देख रहे हैं, वहां पर सुख शांति के साथ लोग खाने का एक स्वाद लेकर एक अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। पर जब आशीष का समय आता है, यही एक बहुत इम्पोर्टेंट, यस करेक्ट, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां पर मसीह लोग चूक जाते हैं। जब हम बहुत कष्ट के समय में होते हैं या हम बहुत संकट में होते हैं, हम परमेश्वर की खोज करते हैं, हम उपवास प्रार्थना में जो है समय व्यतीत करते हैं, परमेश्वर को ऐसे खोजते हैं कि यू नो वी आर वेरी desperate to have the presence of God in our life when we are in trouble, isn't it? Yes or no? Do we all agree to this? जब हम कठिन परिस्थिति में होते तब हम क्या करते हैं, परमेश्वर की खोज करते हैं। But once the blessings come, we see in the diagram, the person is in peace now and they are happy and rejoicing the blessings of God. जो परमेश्वर ने दिए गए आशीष का अनुभव करते हैं, वो अपने आप को क्या करते हैं, कंफर्ट जोन में होते हैं। और उस कंफर्ट जोन में रहते 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 फिर से वो पाप की ओर बढ़ जाते हैं। कितने लोगों ने पर्सनल लाइफ में इस चीज का अनुभव किया, जिस कठिन परिस्थिति में हम परमेश्वर को
पुकार कर प्रार्थना करते हैं, जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, आशीष में होते हैं, ब्लेसिंग्स में होते हैं, वही with that kind of urgeness or with that kind of a situation, we don't call upon the Lord because we are already in blessing and in our own comfort. परमेश्वर ने दी गए आशीष में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस परमेश्वर ने जिन्होंने हमें ये आशीष दिया है उसको हम भूल जाते हैं। यही पैटर्न जो है इजराइल के लोगों ने सफर किया। सो द साइकिल विच यू सी, जो चक्र देख रहे हैं, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। पर आज हमें deliberately इस चीज को जानना है। We have to be sensitive towards God. Hallelujah. We need to be sensitive towards God and understand how we need to come out of this cycle, right? ऐसा हो कि परमेश्वर यीशु मसीह में आने के बाद हम ऐसी व्यक्ति बनने पाए कि हम फिर से साइकिल में नहीं जाने पाए। हालेलुया। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे एंसेस्टर्स ने गलतियां की है या जिनकी वजह से आज हम ऐसी स्थिति में या परिस्थिति में हैं, हम आगे चल के हमारे जो आने वाले जनरेशन को ये साइकिल में नहीं आना चाहते। लेट देम नॉट कम इनटू दिस साइकिल। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट? हालेलुया। कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में फिर से नहीं आए? प्रेज गॉड। श्योर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिलोवर्ड कि हम ये जाने कि परमेश्वर नहीं चाहते कि हम इस पाप के जो चक्रव्यूह है उसमें हम क्या हो जाए, हम उसमें फंस जाए। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के अधिकार वाले नाम से इस चीज से बाहर निकलने पाए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन्स टू बी कमिंग आउट ऑफ इट, राइट? थैंक यू जीसस। ग्लोरी टू गॉड। Thank you, Lord Jesus. Okay, I will share another screen with you now. Yeah. Thank you, Lord. Hallelujah. We are seeing this screen here. So यहाँ पर जब इजरायली लोग जो थे परमेश्वर के जो कवनेंट के द्वारा, when they had entered the land of Canaan, जो प्रॉमिस का लैंड है, वहां पर आने के बाद उन्होंने फिर से जो है पाप करना शुरू कर दिया। So we see here God wanted Israel to reject the Canaanites. हालेलुया। परमेश्वर चाहते थे कि जो ये विधर्मी लोग उनके इर्द गिर्द है, यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लोगों से भरा हुआ है, जो परमेश्वर के जन नहीं है, उनसे वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। बिकॉज हियर वी सी अ होली पीपल, स्क्रैच करके कैनानाइट लिखा गया है, राइट? परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र जन बने, ना कि हम जो हमारी दुनिया में चले जा रहे रीति रिवाज को अपनाकर उनकी तरह बन जाए, बल्कि हम परमेश्वर के दिए गए जो वचन है या फिर जो बाइबल में दिए गए हर कोई चीज हमारे अच्छे के लिए है, उसको अपनाकर क्या बने, एक पवित्र जन बने, राइट? अगर आपने प्रीवियस स्लाइड को अगर देखा होगा, वहां पर दिया गया है, नीचे आपने लिखा होगा इजराइल फेल्स टू ड्राइव आउट द कैनानाइट्स। नीचे लिखा हुआ है इजराइल फेल्स टू ड्राइव आउट द कैनानाइट्स। इसका मतलब ये है कि ये लोग जो है ये पाप के चक्र में क्यों फंसे जा रहे थे, इसलिए क्योंकि उनकी सहभागिता जो है उनकी तरह परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोगों से नहीं थी, पर उनकी सहभागिता जो विधर्मी लोग हैं, जो सच्चे परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ थी। इस वजह से ये लोग क्या कर रहे थे, बार बार उस साइकिल में जा रहे थे। फिर से वो पाप करते, ऑपरेशन की पीड़ा से गुजरते, पश्चाताप करते, फिर परमेश्वर को पुकार कर प्रार्थना करते और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते, फिर उनकी जिंदगियों में परमेश्वर शांति लाते, क्योंकि परमेश्वर हमें कभी भी जो है नाश होने के लिए नहीं चाहते, isn't it? God doesn't want that we should perish, but come to the saving knowledge of Christ. तो फिर से शांति आती, और जब शांति और अलौकिक आशीषें उनकी जिंदगी में आती तो ये लोग फिर से पाप करने लगते। तो ये जो चक्र चलता ही जाता, इसीलिए होता। यहाँ पर लिखा गया है इजराइल फेल्स टू ड्राइव आउट द कैनानाइट्स। आज हमारे व्यक्तिगत जिंदगी में भी हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी
ऐसे चक्रव्यूह में जो है लोगों को देखते हैं या अपने पास्ट को अगर देखते हैं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव समवेयर इन द पास्ट आल्सो गॉन थ्रू दीज थिंग्स, राइट? Hallelujah, glory to God. But God is giving us an teaching today that how we can get rid of such things, right? यहाँ पर जब परमेश्वर ये चाह रहे हैं कि जो आप पवित्र जन बने, वहां पर यहाँ पर लिखा गया है कैनानाइट पीपल, मतलब आप जो विधर्मी जातियों के लोग बन चुके हो, क्योंकि आप यहोवा परमेश्वर ने दिए गए जो नियम है, नियम शास्त्र है या बाइबल है, उसके अकॉर्डिंग आप नहीं हो, बल्कि जो मॉरल करप्शन दुनिया में चल रहा है, चाइल्ड सैक्रिफाइस चल रहा है, जो पुराने नियम में हम लिखा गया है कि किस प्रकार जो है चाइल्ड सैक्रिफाइस किया जाता था, आइडल वर्शिपिंग किया जाता था, ये सारी चीजें जो पुराने नियम में लिखे गए हैं उसके भागी बनकर फिर से ये लोग जो है क्या करने लगे, पाप करने लगे। तो ये साइकिल ऐसे ही चलता गया। इसलिए परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट इज गॉड आस्किंग अस टुडे? हालेलुया। आज का जो ये टॉपिक है, आज का जो ये बाइबल में से हमने जो वचन भी हमने आज देखे, इसको जानकर ही हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो परमेश्वर ने हमें जो प्रॉमिस वचन दिया है या जो आशीष दी है उसको अगर हम पाना चाहते हैं तो इन सब चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। वी नीड टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। हालेलुया। सबसे पहले हमने देखा दैट वी नीड टू फॉरगिव पीपल। Second thing, we saw that the aspect of sin, which is a hindrance between a person and God, जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, वो पाप है, right? We saw that, isn't it? So here we see that, अब स्लाइड में हमने देखा था कि इजराइल did not get rid of Canaanites. इस शब्द को आप याद रखिए। Can someone type it on the chat box? Canaan or Canaanites? ये हम कल देखेंगे कि परमेश्वर हमें इस चीज के बारे में और क्या प्रकटीकरण दे रहे हैं, राइट? Someone can type it on the chat box, Canaanites. So tomorrow we are going to have a detailed study about why God is asking the people of Canaan and Canaanites. Canaan ये शब्द याद रखिएगा, Canaanites are the people from Canaan. इसका जो डीप या हिस्ट्री है या स्टडी है कल हम करेंगे। परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम जाने कि ये साइकिल को हम कैसे तोड़े और इससे हम बाहर कैसे आए। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। आज जो 1 सितंबर है, परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया उपवास प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के वचन को जो बांट सके, परमेश्वर के नाम को महिमा देते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई के साथ। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो दिस मंथ ऑफ सितंबर गॉड इज आस्किंग अस टू बी in a position of obedience to God. Hallelujah. ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर हमें prophetic word देते हैं, हमें promise word देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आए। हालेलुया। कितने लोग इस बात से सहमत है that we need to come into obedience first? हालेलुया। क्योंकि जब हम obedience में आते हैं, परमेश्वर के कलाम को मानकर उसके according रहते हैं, obedience का मतलब क्या है? Hearing the word of God and acting according to it. आज्ञाकारिता मतलब परमेश्वर के वचन को सुनना और सुनकर उसके जैसा रहना। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो इस महीने में परमेश्वर हमारा जो लक्ष्य जो है आज्ञाकारिता पर केंद्रित कर रहे हैं। गॉड इज आस्किंग अस टू फोकस ऑन आवर पर्सनल लाइव्स। हमारी व्यक्तिगत जिंदगियों में हम कितना अधिक परमेश्वर के वचन को जो इम्प्लीमेंट करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को ओबे करते हैं, as we start to obey the word of God, God will allow, we are actually allowing God to correct our lives. परमेश्वर जबरदस्ती से या उनकी ओर से हमें करेक्ट नहीं करते। परमेश्वर वेट करते हैं कि कब उनकी संतान उन्हें अनुमति देता कि उनकी गलतियों को परमेश्वर करेक्ट कर सके। Isn't it? Because the Holy Spirit is a gentle spirit. It will not forcefully come in your life and try to operate and to change you. You need to allow the Holy Spirit to work in your life. Hallelujah. सबसे पहले इस सितंबर के महीने में, जैसे आज 1 सितंबर है, this month is starting,
God is asking his children to concentrate on their obedience unto the Lord. And that is going to enable you to get corrected from God. Hallelujah. हम बहुत लोग परमेश्वर से हर दिन आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे काम के लिए प्रार्थना करते हैं, सेविकाई के लिए प्रार्थना करते हैं. हमारी प्रार्थनाओं की लिस्ट हमेशा से ही लंबी चौड़ी होती है. Isn't it? Our prayer list will not be small. However, when we are presenting our prayer list to God, before that, we always need to be reminded when God is going to bless you, how are you going to handle that blessings? Hallelujah. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जब परमेश्वर आपको आशीषित करते हैं तो आप उन आशीषों को कैसे संभालने वाले हो, और उन आशीषों की परिस्थिति में आप परमेश्वर की उपस्थिति में कितना समय बिताने वाले हो, और आप आत्मिक तरीके से कैसे बढ़ने वाले. आपने उस प्रेजेंटेशन में देखा कि डिलीवरेंस के बाद फिर से शांति का समय आता है, आशीष का समय आता है, फिर से लोग व्यस्त हो जाते हैं, परमेश्वर ने दिए गए आशीष में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परमेश्वर के जिस परमेश्वर ने उन्हें ये आशीष दी है उससे कंप्लीटली भूल जाते हैं, और फिर से साइकिल शुरू हो जाता है जो उन्हें पाप की ओर लेकर जाता है. इसी चीज को हमें क्या करना है, हमें ध्यान पूर्वक क्या करना है, इसको हैंडल करना है. हालेलुया. Glory to God. Thank you, Jesus. So when we come into obedience to God, we allow God to correct us. Hallelujah. This is very important, beloved. क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम फिर से उसी गलतियों में गुजरे, और काफी लंबा समय लगता है हमें उन सारी गलतियों का पश्चाताप कर कर फिर से नए सिरे से शुरू करने में काफी साल लग जाते हैं. We don't want to be doing the same old foolish things again. Rather, we want to grow more, accelerate more. We need to advance. Hallelujah. हर लोग यही चाहते हैं कि हम फिर से उस गलतियों को ना दोहराए, बल्कि हम आगे बढ़े. राइट? परमेश्वर की वचन के अनुसार हम क्या करें, आगे बढ़े. Hallelujah. Glory to God. So here the word of God says that in Proverbs, नीति सूत्र 15 का 32वां वचन. I'll be reading it in yes. Okay, I'll read Proverbs 21 verse 3 first. Thank you, Lord. It says that नीति सूत्र 21 का 3 वचन ये कहता है, to do righteousness and justice is more acceptable to the Lord than sacrifice. मतलब आप जो न्यायपना के साथ या नीतिमान के साथ आप जो रहते हो, उससे अधिक जो है more acceptable to the Lord than sacrifices to do righteousness and justice. ये एक obedience का ही भाग है. Right? Your righteousness and justice is more acceptable to the Lord than the sacrifices that you do. Hallelujah. कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, right? Glory to God. Thank you, Jesus. So let's read another word from here. Thank you, Jesus. Glory to God. Yes. So here it says as, he who disdains instruction despises his own soul, but he who heeds rebukes gets understanding. I'll read it amplified for better understanding. Proverbs 15 verse 32. Anyone can paste it on the chat box. Yes, he who neglects and ignores instruction and discipline despises himself, but he who learns from rebuke acquires understanding and grows in wisdom. वचन ये कहता है कि जो करेक्शन या इंस्ट्रक्शन परमेश्वर देते हैं, अगर उसको रिजेक्ट करता है, अगर उसे नाकारता है, तो वो कभी भी नहीं बढ़ पाएगा. पर ऐसा व्यक्ति जो करेक्शन है उसको स्वीकारता है, तो वो ज्ञान और बुद्धि में बढ़ने वाला है. हालेलुया. हम ऐसे व्यक्ति बनने पाए इस वचन के अनुसार कि परमेश्वर जब इस समय पर हमें किस चीज पर हमारे लक्ष्य को केंद्रित करना चाह रहे हैं, वो है आज्ञाकारिता, परमेश्वर की और आज्ञाकारिता. ओबीडियंस अनटू द लॉर्ड. ओबीडियंस अनटू द लॉर्ड विल अलाउ यू टू बी करेक्टेड. वचन ये कहता है, he who neglects and ignores instruction and discipline despises himself, but he who learns from rebukes acquires understanding and grows in wisdom. Hallelujah. ये वचन हमारी जिंदगी में कार्य करने पाए. Amen. Thank you, Jesus.
Let's move to the next word. Hallelujah. Thank you God. पहला सामुएल की 15वें अध्याय के 22वें वचन में ये कहा गया है, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? क्वेश्चन मार्क दिया गया है कि क्या परमेश्वर तुम्हारे दिए गए वेदी पर चढ़ाए गए जो अर्पण है क्या उससे बहुत खुश है, या फिर तुम जो आज्ञाकारिता से जो जिंदगी व्यतीत करते हो उससे खुश है? So he say that behold, to obey is better than sacrifice. तुम्हारी आज्ञाकारिता तुम्हारे दान अर्पण से भी बढ़कर है. सो ये जो बात परमेश्वर आज हमसे कह रहे हैं, हालेलुया, ये सिर्फ इसी समय के लिए नहीं बल्कि हर समय जब तक हम परमेश्वर ने अनुमति दी है कि हम जिंदा रहे इस पृथ्वी पर परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए, सबसे पहले परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम आज्ञाकारिता के साथ रहे. We need to be obedient to God in everything that we do. Hallelujah. Glory to God. So when you are obeying God, God is, seeing you as a child and giving you certain places where you are allowing God to get corrected from God. Hallelujah. So that is where you will be sustaining your blessings. हमने देखा इस साइकिल को जहां पर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया और क्या उन्होंने परमेश्वर को ओबे किया उस आशीष के समय पर? उन्होंने ओबे नहीं किया, फिर से कहाँ चले गए, फिर से पाप करने लगे और ये साइकिल पूरा अंदर अंदर जाकर इट वाज गोइंग डीप 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 एंड इट वाज गोइंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन. मतलब उन्हीं तक ये सीमित नहीं रहा और ये उनकी आने वाली पीढ़ी को क्या होता गया, ट्रांसफर होता गया. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो कठिन परिस्थिति से हमारे पूर्वज या हमारे एंसेस्टर्स गुजरे हैं, वही एक पैटर्न जो है उनकी जो आने वाले जनरेशंस भी फेस करते हैं जब तक वो प्रभु यीशु मसीह में नहीं आ जाते और प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा वो उद्धार नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक इस साइकिल में वो कंटिन्यूअस ही चलते रहते हैं. दे नीड डिलीवरेंस, राइट? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस. सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट आप जो परमेश्वर की उपस्थिति में अर्पित करते हो उससे बढ़कर जो है आप परमेश्वर की ओर आज्ञाकारिता की जीवन को बिताए. Hallelujah. Thank you, Jesus. So let's read one more word today, which the Lord gave me today. That is Psalms 139. भजन संहिता से ये वचन हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पर परमेश्वर उसके omnipresence and omniscience character के बारे में कह रहे हैं. Hallelujah. So we know how God has blessed us. This is a very beautiful Psalms, and indeed, I would ask all of them to read it at home, the entire Psalm, right? So here I am reading only few scriptures and which has really touched me, and indeed all the scriptures in the Psalms are very beautiful and they are going to talk to you in a depth. Hallelujah, glory to God, thank you Jesus. Hallelujah. This is a very powerful word which every person needs to declare over their lives. Hallelujah. Psalms 139. थैंक यू लॉर्ड जीसस. हालेलुया. यहाँ पर जो है 23वां वचन है, यहाँ पर लिखा गया है, सर्च मी थरोली ओ गॉड एंड नो माय हार्ट, टेस्ट मी एंड नो माय एंग्शियस थॉट्स एंड सी इफ देयर इज एनी विकेड और हर्टफुल वे इन मी एंड लीड मी इन द एवरलास्टिंग वे. हालेलुया. जब एक व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाकारिता में आता है तो हर दिन उसे इस तरह से प्रार्थना करना है. आप नए मसीह हो सकते हैं, नए बिलीवर हो सकते हैं और आप इस बात को नहीं जानते कि हम किस तरह से प्रार्थना करें. तो जब परमेश्वर का वचन हमें दिया जाता है, परमेश्वर के वचन को इस्तेमाल करके हमें प्रार्थना करना है. यहाँ पर हम देखते हैं दावीद जो भजन संगीतकार है वो ये लिख रहा है कि परमेश्वर मेरे अंतःकरण को आप जांचिए. चेक मी लॉर्ड, करेक्ट मी. Hallelujah. Deliberately and intentionally he is trying to come in the presence of God and he wants to obey God. Test me and know my anxious thought. आप जिस समय सुबह उठते हैं उस समय से लेकर रात को सोने तक आपके दिमाग में thousands of हजारों ऐसे anxious thoughts आते हैं, isn't it? And we can't stop them. But when we allow God, test me Lord, मुझे परखो. हालेलुया. जब हम परमेश्वर को ये अनुमति देते हैं, परमेश्वर आप मुझे परखिए, मेरे अंतःकरण को जानिए, आप चेक कीजिए कि कहीं मेरे अंतःकरण में ऐसे जो चीजें चल रही है जो
मुझे आपसे अलग करती है या मुझे पाप की ओर लेकर जा रही है, उसे मुझे क्या कीजिए, मुझे उससे करेक्ट कीजिए। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपनाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को अप्लाई कर कर प्रेयर करते हैं, जब परमेश्वर हमें इस वचन के अनुसार प्रार्थना करने के लिए इंस्पायर करते हैं। हालेलुया। एंड सी इफ देयर इज एनी विकेड और हर्टफुल वे इन मी एंड लीड मी इन द एवरलास्टिंग वे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। और एक वचन यहाँ पर दिया गया है, इसी भजन संगीतकार के सी स्टैम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. हमें ये जानना है कि परमेश्वर ने हमें कैसे रचा है। हालेलुया। हम ऐसे ही कहीं से आए हुए प्रोडक्ट्स नहीं है। We have been wonderfully and fearfully made. परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उसके प्रतिमा के अनुसार बनाया है। हमने उत्पत्ति की किताब में इस चीज को देखा था। हालेलुया। We have seen this, right? In the book of Genesis. Hallelujah. Glory to God. So let's read this in Hindi once and understand what it means. Thank you, Lord Jesus. Yes. So मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ। हे यहोवा, तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन को समझ रहे हैं कि परमेश्वर ही हमारे बारे में जानता है। Isn't it? Only God alone knows about you and me. कोई व्यक्ति हमारे बारे में जाने या ना जाने, और परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। हे यहोवा, तूने मुझे परखा है। हालेलुया। परमेश्वर जब हमें परखता है, जब परमेश्वर हमें करेक्ट करता है, परखना मतलब हमें जांचना, करेक्ट करना, जब वो करता है परमेश्वर की ओर से, ये जो होता है ये बहुत ही अद्भुत होता है। राइट? आमेन। हालेलुया। So when we go through that experience, it is, purifying us. हमें सोने के समान तराशता है, बहुमूल्य बनाता है। हालेलुया। ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। सो हे यहोवा, तूने मुझे परखा है, मेरे बारे में तू सब कुछ जानता है। आमीन। तू जानता है कि मैं कब बैठता और कब खड़ा होता हूँ। तू दूर रहते हुए भी मेरी मन की बातें जानता है। आमीन। परमेश्वर ही ऐसा पिता है कि जो हमारा उठना बैठना, हमारा बात करना, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारे हर दिन की जिंदगी की हर चीज को जो है से परमेश्वर जानता है। इसीलिए इसका टाइटल है ओमिनिसेंस एंड ओमिनी प्रेजेंस, जो परमेश्वर हर समय हर जगह रहने वाला खुदावन है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग आशीषित है इस वचन के द्वारा? आर वी रिसीविंग दिस वर्ड टुडे? आमेन। थैंक यू जीसस। यस, कौन हमें जानता है? परमेश्वर हमें जानता है। ये दाऊद ने लिखी गई स्तुति गीत है। आमेन। हालेलुया। हे यहोवा, तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता और कब लेटता हूँ। मैं जो कुछ करता हूँ सबको तू जानता है। Isn't it? जब भी हम लेटे हुए होते हैं, हम जो भी कुछ कार्य करते हैं, यहोवा परमेश्वर हमारा पिता ये सारी चीजों को जानता है। हे यहोवा, इससे पहले कि शब्द मेरे मुख से निकले, तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आमीन। हालेलुया। ये हर चीज जो है, इवन हमारे मुख से निकलने वाले शब्द आने से पहले ही हमारे अंतकरण को, हमारे हृदय को हमारा परमेश्वर पिता जानता है। आमीन। हे यहोवा, तू मेरे चारों ओर छाया है। हालेलुया। मेरे आगे और पीछे भी तू अपना निज हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ है। परमेश्वर कैसे हमें सुरक्षित रखते हैं? हालेलुया। चारों ओर से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखते। जैसे माता पिता अपने बच्चों को सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। हालेलुया। मुझे अचरज है उन बातों पर जिनको तू जानता है, जिनका मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। हालेलुया। There are so many things in a human's life that our human mind cannot comprehend. मुझे अचरज है इन सारी बातों को जो तू मेरे बारे में जानता है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। इस बात पे मुझे एक छोटी सी गवाही जो शेयर करने के लिए परमेश्वर याद दिला रहे हैं। 2012 में जब मैं और मेरे पति एक बहन के पास, हम जो परमेश्वर की सेविका करते हैं,
और प्रोफेटिक सेविकाएं हैं उनकी, तो उनके पास हम हमारे निजी व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए गए थे। जब परमेश्वर ने इस बहन को मेरी व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में प्रकटीकरण दिया तो मैं अचरज हो गई। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड एस्टोनिश्ड। परमेश्वर ने उस बहन को ये बताया कि मैं मेरे पर्सनल लाइफ में परमेश्वर की आराधना करती हूँ और मैं परमेश्वर के लिए आराधना गाती हूँ। ये बात मेरे परिवार के जन भी नहीं जानते थे और ये किसी को भी नहीं पता था, सिर्फ परमेश्वर और मुझ में ही ये बात थी कि जब भी मैं कॉलेज की पढ़ाई करती तो मैं मेरे बुक्स में, मेरे कॉलेज की बुक्स में, व्हेन आई वाज डूइंग माय डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आई यूज्ड टू हैव माय बुक, और उसके अंदर मैं परमेश्वर के महिमा के गीत को रखकर मैं वर्शिप करती थी सीक्रेट में। ये कोई नहीं जानता था। जब ये सिस्टर मेरे लिए प्रार्थना करने लगी, उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर ये दिखा रहे हैं कि आप सीक्रेट में बैठकर जो है परमेश्वर की आराधना करते हो। और तब मेरी आंख खुली हो गई। मैंने कहा ये बात तो कोई नहीं जानता, और मैंने कभी इस चीज का पब्लिसिटी नहीं किया कि आई एम सीक्रेटली वर्शिपिंग गॉड, दिस ओनली गॉड नोज। और किस जगह पर मैं बैठकर, बेड पर बैठकर पढ़ते हुए मैं परमेश्वर की आराधना करती थी, ये सिर्फ परमेश्वर जानते हैं। मेरे पेरेंट्स भी इस बात को नहीं जानते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि मैं पढ़ रही हूँ, आई एम डूइंग माई स्टडीज और प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स, बट आई हैड एन हैबिट टू वर्शिप गॉड, read the word of God, and then begin my studies. Nobody knew it. This was a secret thing. Only God knew it. So ये वचन जो है कितना सत्य है। ये वचन ये कहता है, मुझे अचरज है उन बातों पर जिनको तू जानता है, जिनका मेरे लिए समझना बहुत कठिन है। पर परमेश्वर ने प्रोफेटिकली इस सिस्टर को ये बताया कि ये जो है सारा सिस्टर ये ऐसी चीजें करती है, परमेश्वर की आराधना करती है। मेरे बहुत यंग एज में ही मैं ये कार्य करती थी, और तभी उन्होंने प्रगटीकरण दिया कि परमेश्वर आपको सेविकाई के लिए बुला रहे हैं। 2012 में हमें ये बुलावट आई, और मैं और मेरे हस्बैंड अचरज में रह गए कि परमेश्वर हमें सेविकाई के लिए बुला रहे हैं। तब हम सेविकाई क्या है इस बात को भी नहीं जानते थे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। पर आज परमेश्वर का ये वचन सत्य हुआ है। आज हम जब सेविकाई में हैं, हम फिर उस सालों में पास्ट में झांक कर देखते हैं जब 2012 में ये प्रोफेसी मिली थी। आज हम सचमुच ही परमेश्वर के लिए क्या बन गए हैं, ऐसे पात्र बन गए हैं कि जहां पर परमेश्वर उसकी आत्मा को उंडेल कर उसके राज्य की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पर हमें अचरज होता है कि परमेश्वर हमारे अंतःकरण में चल रहे हर एक चीज को, हमारे विचार को भी समझने वाला परमेश्वर है। हर जगह जहां भी मैं जाता हूँ वहां तेरी आत्मा रची है। हे यहोवा, मैं तुझसे बचकर नहीं जा सकता। दावीद ये कह रहा है, जहां कहीं पर भी वो जाना चाहता है वहां पर पहले से ही परमेश्वर की आत्मा उपस्थित है। हम परमेश्वर से भागकर कहाँ जा सकते हैं? Isn't it? We cannot run from God. हालेलुया। हे यहोवा, यदि मैं आकाश पर जाऊं वहां पर तू है, यदि मैं मृत्यु के देश पाताल में जाऊं वहां पर भी तू है। यहाँ पर दाऊद ये इसलिए कह रहा है कि सारी सृष्टि का रचता जो परमेश्वर यहोवा है, उसके अंडर आकाश और पाताल भी आता है। हालेलुया, बिकॉज गॉड इज एन अथॉरिटी ऑफ एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। ग्लोरी टू गॉड। हे यहोवा, यदि मैं पूर्व में जहां सूर्य निकलता है जाऊं वहां पर भी तू है। हालेलुया, वहां तक भी तेरा दाया हाथ पहुंचता है और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। हालेलुया। सो दावीद ये कह रहा है कि जिंदगी के हर एक परिस्थिति में, हर एक चुनौतियों में, हर एक जगह पर परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। हालेलुया। ऐसी कोई भी जगह नहीं दुनिया में या कहीं पर भी हमारे जिंदगियों में हम कह सकते हैं कि परमेश्वर आप कहाँ हो। परमेश्वर हमारे साथ ही है। राइट, देयर इज नो सच सिचुएशन और a challenge or a difficulty in life where you can say God was not with me. God was always with you. He's always walking with you. That is why you are victorious today. That is why we and you are alive today. हम जीवित हैं, ये इसका सबूत है कि परमेश्वर आज तक हमारे साथ चलता आ रहा है और वो हमेशा ही से ही हमारे साथ चलने वाला है। हाथ पकड़कर चलाने वाला परमेश्वर आपको और मेरा जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया,
ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस। अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। और हाथ पकड़कर मुझको ले चलता है। 11वां वचन, हे यहोवा, संभव है मैं तुझसे छिपने का जतन करूं और कहने लगूं, दिन रात में बदल गया तो निश्चय ही अंधकार मुझको ढक लेगा। सी दाविद ये कहता है कि अगर मैं कोई प्रयत्न भी करूं मैं तुझसे छुपने का, दिन रात में बदल गया है तो निश्चय ही अंधकार मुझको ढक लेगा। किंतु यहोवा, अंधेरे में भी तेरे लिए अंधकार नहीं है, तेरे लिए रात भी दिन जैसा उजाला है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के लिए अंधियारा भी उजाले के समान है। ग्लोरी टू गॉड। हे यहोवा, तूने मेरी समूची देह को बनाया, तू मेरे विषय में सब कुछ जानता था जब मैं अभी माता की कोख में ही था। परमेश्वर हमारे माँ के गर्भ से ही हमें जानने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचा है। हालेलुया। हमारे माँ के गर्भ में हम बायोलॉजिकल शरीर को प्राप्त करते हैं, और हमारा आत्मा जो है, हमारी रूह जो है, हमारा स्पिरिट मैन जो है, ये परमेश्वर की प्रतिमा में बनाया गया है। हालेलुया। दैट्स व्हाई द वर्ड ऑफ गॉड सेज दैट तूने मुझे मेरी माँ की कोख से ही जाना है। हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद। क्या कहता है दाऊद यहाँ पर? सारे अचरज वाले कामों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता है वह आश्चर्यपूर्ण है। हालेलुया। मेरे विषय में तू सब कुछ जानता है। जब मैं अपनी माता की कोख में छिपा था, जब मेरी देह रूप ले रही थी, तब तूने मेरी हड्डियों को देखा। हालेलुया। कितना आशीषित वचन है। जब मेरी माता की कोख में मेरा शरीर जो है फॉर्म हो रहा था, हड्डियां जब बन रही थी, तब से तूने मुझे जाना है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप एक मसीह परिवार में ही पैदा हुए हो, ये जरूरी नहीं है कि तभी आप मसीह को जान सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने सभी को उसके प्रतिमा में रचा है। परमेश्वर आपको और मुझको अपने माँ की कोख से ही जानता है। जब इस देह को हमारे माँ की कोख में फॉर्म होता हुआ ही परमेश्वर उस समय से हमें जानते हैं, क्योंकि वही हमें इस शरीर में भी रचने वाला वही परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग इस वचन से आशीषित है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, थैंक यू जीसस, आमेन। हे यहोवा, तूने मेरे देह को मेरी माता के गर्भ में विकसित देखा। ये सभी बातें तेरी पुस्तक में लिखी है। किसकी पुस्तक में लिखी है? परमेश्वर की पुस्तक में लिखी है। हर दिन तूने मुझे सृष्टि की, एक दिन भी तुझसे नहीं छूटा। हे परमेश्वर, तेरा विचार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। तेरा ज्ञान अपरंपार है। सबसे अधिक यही बात है, ये वचन इतना इंपॉर्टेंट है। Hallelujah, beloved, this word is so important. हे परमेश्वर, तेरे विचार मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि परमेश्वर के विचार मेरे लिए क्या मायने रखती है। हालेलुया। क्योंकि लोग तो अपनी ओर से काफी सारे स्टेटमेंट्स या एक तरह का जैसे बोलते हैं कि उनका एक कमेंट हमारी तरफ दे सकते हैं। हम उन्हें रोक नहीं सकते, isn't it? We can't stop them. But for me, what my God thinks is very important. How precious also are your thoughts to me, O God. परमेश्वर के विचार मेरे लिए क्या है, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है मेरे लिए। ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरे बारे में क्या कहते हैं, मेरे बारे में उनकी धारणा क्या है, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं, बल्कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। अगले वचन की ओर जाते हैं। तू जो कुछ जानता है उन सब को यदि मैं गिन सकूं तो वे सभी धरती के रेत के कणों से अधिक होंगे, किंतु यदि मैं उनको गिन पाऊं तो भी मैं तेरे साथ में रहूंगा। इसका मतलब ये है, परमेश्वर आपके और मेरे लिए क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, ये हम गिन नहीं सकते। Hallelujah. Glory to God. Is it possible for us to count the thoughts that God has for us? Your eyes, isn't it? If I could count them, they would outnumber the sand. When I awake, I am still with you. जब मैं उठता हूँ तभी भी मैं आपके साथ ही होता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के विचार जो आपके और मेरे लिए है उनको हम गिन नहीं सकते। हालेलुया। हे परमेश्वर, दुर्जन को नष्ट कर, उन हत्यारों को मुझसे दूर रख।
वे बुरे लोग तेरे लिए बुरी बातें कहते हैं, वे तेरे नाम की निंदा करते हैं। हे यहोवा, मुझको उन लोगों से घृणा है जो तुझसे घृणा करते हैं, मुझको उन लोगों से बैर है जो तुझसे मुड़ जाते हैं। दाऊद ये कहता है जो लोग परमेश्वर से घृणा रखते हैं वो उनसे घृणा रखता है, और ऐसे लोगों से दाऊद ये कह रहा है कि परमेश्वर उसे बचाए, क्योंकि जो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करता है उनके साथ हम क्या करते हैं, संगति नहीं रख सकते। हालेलुया, glory to God. The word of God says that, let me read it in English also. Oh, that you would kill the wicked, O God. Go away from me, therefore, men of bloodshed, for they speak against you wickedly. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not load those who rise up against you? मतलब जो आपका द्वेष करते हैं परमेश्वर, उनका मैं भी द्वेष करता हूँ। जो आपकी घृणा करते हैं उनकी मैं घृणा करता हूँ। हालेलुया, मुझे उनसे पूरी तरह घृणा है। तेरे शत्रु मेरे भी शत्रु है। हे यहोवा, मुझ पर दृष्टि कर और मेरा मन जान ले। हालेलुया, मुझको परख ले और मेरा इरादा जान ले। मुझ पर दृष्टि कर और देख कि मेरा विचार बुरे नहीं है। तू मुझको उस पथ पर ले चल जो सदा बना रहता है। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को इस सुंदर वचन जो परमेश्वर ने हमें दिया है, और प्रार्थना करते हैं भजन संहिता जो हमने आज पढ़ा। थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर दिस ब्लेसेड वर्ड दैट परमेश्वर ने हमें कितना सुंदर रचा है। हालेलुया, 14th verse, right? It is so beautiful. हे यहोवा, तुझको उन सभी अचरज भरे कामों के लिए मेरा धन्यवाद, और मैं सचमुच जानता हूँ कि तू जो कुछ करता है वह आश्चर्यपूर्ण है। इंग्लिश में कहा गया है, Lord, you have created me in a wonderful way. I will give you thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. Hallelujah. वंडरफुल इंग्लिश में कहा गया है, और हिंदी में आश्चर्यपूर्ण कामों के लिए धन्यवाद, क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस तरह से रचा है, वंडरफुली रचा हुआ है। इसलिए हम विक्टिम्स नहीं है, हम विक्टोरियस है। हालेलुया, दैट इज व्हाई गॉड सेज दैट यू नो लॉन्गर आर विक्टिम्स बट यू आर more than conquerors, and you are victorious because of Lord Jesus Christ. Amen. So आज के दिन परमेश्वर ने सुंदर वचन हमें दिया। इस वचन को मनन करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah. Thank you, precious Master, for this blessed time and our Lord. We thank you for Psalms 139, Lord Father. Indeed, Master, we are so amazed, Lord Father, to think, Lord Father, the wonderful thoughts that you carry for your beloved children, Master. Yes, Lord, as a father and a mother cares for their children, so our Father in heaven cares more for us, more than any biological parents can care for us, Master. Lord, I thank you for this word, Master. Correct us, Lord Father. Bring us into the plan and purpose of God, Father. Today we surrender our lives, Master, that we may obey you in every situation of our life, Master. Lord, we reject the cyclic pattern of sin in our lives, Master. Yes, Lord Father, the time when you bring us into a blessedness and in a state of joy and happiness, Father, we want to use that situation to praise you more, Lord, and to worship you more, Master, and not forget the days, Lord Father, when we were in darkness, Master, and when we are watching to light, Lord Father. We want to use this opportunity to celebrate your name, Master, to glorify your name, Master, and to proclaim your goodness unto the people around us, Master. Yes, Lord Father, we thank you, Lord, for this blessed time and our Lord Jesus. We give you all the glory and honor, Lord Father. Yes, Lord Father, correct us in the areas, Lord Father, where we have failed, Master. Lord, we do not reject your corrections, Master. We accept your corrections, Master. We accept it, Lord Father. Yes, Master, that you may lead us to the paths of righteousness, Lord Father. That you may hold our hands, Master, and instruct us, Lord Father, every step of our life, Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, for this month of September, Master. As we are beginning this new month, Lord Father, this month may bring, oh Lord Father, advancement in our lives, Master. It may bring us to a place of obedience and correction, oh Lord Father. Yes, Abba, Father. Thank you for this word, Lord Jesus. Thank you for making and building us, Father. Thank you for checking our hearts, Master, and correcting us in everything that we do, Lord Jesus. Abba, Father,
We give you all the glory, honor, and praise, Master. And we thank you for this blessed session today, Lord Father, the second day of fasting and prayer, Master. As we are entering a new day tomorrow, Lord Father, the third day, Lord Father, we believe, Lord Jesus Christ, that through the instruction of the Holy Spirit, you will really reveal, oh Master, many things to us, Lord Father. And surely, Master, you will direct us, Lord Father, that how we need to plan our lives and live a life which is consecrated and pleasing in your sight, Master. Yes, Lord Father, you deserve all the glory and honor. In the precious and matchless name of our Lord and our Savior, Yeshua HaMashiach, we ask and pray. Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. God bless you all. Have a wonderful week ahead. And we will meet tomorrow, same timing, 7 p.m. Indian Standard Time, to connect and to be partaking on the third day of fasting and prayer. God bless you all. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise God.